صاحب کی بلا کہ لوگوں نے بیٹیوں کی ولادت پر اگر 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں بیویوں کو طلاق دے دی ہے. ذرا آپ بتائیں اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے, بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ذرا سنیں, ایسا ہی ایک سرفرا تھا, اس نے اپنی بیوی سے کہا سن, اس کے یہاں 6 بچیاں پیدا ہو گئی, 7ویں مرتبہ جب بیوی امید سے ہوئی, جب حاملہ ہوئی, پریگننٹ ہوئی, اس نے کہا سن یہ جو تیری کوکھ میں بچہ ہے نا, اگر یہ بیٹا پیدا ہو گیا تب تو ٹھیک ہے, اور اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو یا تو تجھے میں قتل کر دوں گا یا تو طلاق دے دوں گا اور بچی کو بھی قتل کر دوں گا. بیوی بڑی نیک کی توجہ کرے, اس نے نماز بچھائی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز اس نے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رو کر کے اللہ سے التجا کرتی ہے, اللہ رب العزت میں مجبور ہو, میرا شوہر بڑا ظالم ہے, اللہ تو نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں, یہ 7واں بچہ جو میری کوکھ میں ہے اگر یہ بیٹا ہے تو اللہ رب العزت ٹھیک ہے, اور اگر یہ بیٹی ہے تو اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے, اے اللہ کچھ ایسا کر دے کہ میرا شوہر بیٹیوں سے محبت کرنے لگے. جب اس کا شوہر سویا ہے رات میں تو اس نے دیکھا میدان محشر ہے, لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہیں, اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوا ہے, فرشتے اسے لے کر کے جب جہنم کی طرف چلے ہیں, اس نے دیکھا ہے کہ اس کی پہلی بیٹی جہنم کے پہلے دروازے پر کھڑی ہے, دوسری بیٹی جہنم کے دوسرے دروازے پر کھڑی ہے. توجہ کرے, یہ علماء گواہ ہیں, یہ علماء اس بات کی تائید کریں گے, جہنم کے 7 دروازے ہیں, 5ویں پہ جب فرشتے پہنچے ہیں تو وہاں 5ویں بیٹی ہے, 6ٹھے پہ پہنچے ہیں وہاں 6ٹھی بیٹی ہے, فرشتے کہتے ہیں 7ویں دروازے سے لے کے چلو. جب 7ویں دروازے پر گئے ہیں, 7ویں اولاد اس کی بیٹی نہیں تھی, اس نے بیٹے کی خواہش کی تھی, 7واں دروازہ جہنم کا خالی ہے, فرشتوں نے کہا یہیں سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اس کی آنکھ کھل گئی ہے, وہ ساروں قطار رویا ہے اور کہتا ہے اے اللہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ اگر میرے نصیب میں 10 اولاد بھی ہیں تو 10 مجھے بیٹیاں عطا کر دے, مجھے بیٹے نہیں چاہیے, اس لیے کہ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو باپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیتی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا محبت سے بولتے ایک مرتبہ سبحان اللہ. دیکھیں حضور کے میلاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے پورا سال اللہ اس جگہ سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں سنو, جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے پورا سال اللہ اس جگہ انوار و تجلیات کی برسات فرماتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں سنو, جس جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے, اس علاقے کے لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. اور جتنے لوگ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ جاتے ہیں, امام حق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پورا سال اللہ ان کی عمر میں اور ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے. آپ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں, آپ پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں, اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے جائیں گے. ذرا آپ توجہ کریں, مجھے یہ بتائیں, چاہے آپ تلسی پور میں ہو, چاہے آپ بہرائچ میں کسی خطے میں ہو, اگر آپ اللہ کو سبحان اللہ نہ کہیں پھر بھی اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. چاہے جو اللہ کو سبحان اللہ نہ کہے اس سے اللہ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پوری دنیا میں کسی خطے میں رہنے والا ہو, اگر وہ اللہ کو پاک نہ کہے تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات کل بھی پاک تھی, آج بھی پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں سنو, جو لوگ اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں یعنی سبحان کہتے ہیں, سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک کے. حضور فرماتے ہیں سنو, جو اللہ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ یہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. تو اب توجہ کرے, حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس نے مجھے پاک کہا ہے, میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, بس وہی خدا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں دکھلائے کسے کوئی راہ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ بولتے رہیں, ارے بولنے سے اللہ کی ذات پر
ना आपके बोलने से असर पड़ेगा ना बोलने से असर पड़ेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। एक हदीस और याद आ गई है, सुन ले जरा और उसके बाद बोलते रहे। और मेरा ये तयक्कुन है, यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर आपने इसे दिल के कानों से सुन लिया तो इंशाअल्लाह जब भी आप ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो बोलते रहेंगे। ये जो लोग आगे बैठे हैं उनके चेहरे तो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हैं चेहरे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका वजूद जरूर नजर आ रहा है। उनसे भी मैं चाहता हूँ कि वो तवज्जो मेरी तरफ करें और कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। देखिए हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, जा मैंने तुझे बख्श दिया। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को खुद ताज्जुब होगा कि अल्लाह ने मुझे बख्श कैसे दिया। वो अर्ज़ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने मुझे बख्श दिया है, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी तेरा नाम भी लिया हो, मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी नमाज भी पढ़ी हो, मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी सजदे भी किए हो। ऐ अल्लाह तूने आज मुझे बख्शा है तो मुझे इसका जवाब दे दे कि मुझे बख्शा क्यों है। हुजूर फरमाते सुनो, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे सुन, तू दुनिया में मुझे भूल गया लेकिन मैं तेरा रब हूँ, मैं भूलने से पाक हूँ। तूने नमाजें तो नहीं पढ़ी थी, हज तो नहीं किए थे, ज़कात तो नहीं दी थी, लेकिन एक मर्तबे तू सो रहा था, सोते सोते तूने करवट बदली। जब तूने करवट बदली तेरी ज़बान से निकला या अल्लाह, तेरा या अल्लाह कहना मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने उसी वक्त तेरी मग़फ़िरत फरमा दी थी और जन्नत तो तुझे मैं वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह देखिए एक अदा अल्लाह को पसंद आ गई, बंदे की मग़फ़िरत हो रही है, उसकी जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे रहा है। एक अदा अगर अल्लाह ने आपकी पसंद फरमा ली तो आप सबकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी और हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए कोई बात अच्छी लग जाया करे तो हुजूर के नाम पर सुभान अल्लाह कह दिया करे। इसलिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में हुजूर है और अपनी जान से हुजूर से ज्यादा, आप अपनी जान से ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा हुजूर को अजीज रखते हैं और होना भी यही चाहिए। हुजूर फरमाते सुनो, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी आलो औलाद से ज्यादा मुझे प्यार ना करे। और हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और कैसी मोहब्बत करते हैं जरा देखें आप। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये बताओ कौन है जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके। सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी अंबिया का ईमान ऐसा है कि जिनके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके। हुजूर ने फरमाया नबियों के ईमान पे कैसा ताज्जुब, उनको तो अल्लाह ने नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, अल्लाह ने उन्हें वही अता की है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत दी है, अल्लाह ने उन्हें किताब दी है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पर ताज्जुब किया जाए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, दिनों रात मेरे रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते हो, तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो अब जरा तवज्जो फरमाएं, सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर बताएं कौन है कि जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके, जिनके ईमान को देख करके हमें ताज्जुब हो। तो हुजूर ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, जो मुसलमान आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पे ताज्जुब किया जा सकता है। हुजूर ने फरमाया सुनो उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब हुजूर का नाम आता है तो हम कहते दुनिया वाले सुनो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है वो हो कलम तेरे है, दुनिया में है। कहते सुनो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और जब कब्र में जाएंगे हुजूर सामने होंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते थे, तो हम कहेंगे सुनो फरिश्तों इन्हें जाना, इन्हें माना, ये रखा गैर से कहो लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बाबा नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोलेंगे ना, देखें जितने लोग मुझे लगता है अगर दो तरफ डिवाइड कर दिया जाए, एक तरफ जितने लोग बचेंगे विदाउट मोबाइल और एक तरफ विद मोबाइल, यानी एक तरफ मोबाइल वाले और एक तरफ बगैर मोबाइल वाले, यानी जितने लोग नहीं उतने तो चैनल है, समझ रहे हैं। आज हाल ये है 22-23 सब्सक्राइबर भी वो भी लाइव चलाता है, समझ रहे हैं आप। तो चैनल वाले तो बहुत हैं। देखें
ये चैनल है, इसके जरिए पूरी दुनिया में आपके इस प्रोग्राम को भी देखा जाएगा, आपको भी देखा जाएगा और आपके इस जज्बे को भी देखा जाएगा। इसलिए आप बोलते रहे, मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी तवज्जो रखें, लेकिन ये मिलाद मुस्तफा की महफिल है। मैं चाहता हूँ आपके सामने मैं हुजूर का मिलाद ही पढ़ दूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। लेकिन मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत। मिलाद क्या है? हुजूर की पैदाइश। मिलाद क्या है? हुजूर का बर्थ। मिलाद क्या है? हुजूर का जन्म। जरा तवज्जो करें, इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे बताएं कि हुजूर की विलादत कहाँ हुई है? मक्के में हुए कि मदीने में हुई? अगर याद है तभी बोलिएगा, समझ रहे हैं? तो अभी पूछ लिया जाए, बताओ विराट कोहली कहाँ रहता है? मुंबई में। शाहरुख खान कहाँ रहता है? मन्नत में। सलमान खान कहाँ रहता है? गैलेक्सी अपार्टमेंट में। पूछ लिया जाए, बताओ मुंबई में कहाँ? गिना देंगे, बांद्रा रोड और अंधेरी रोड, इधर उधर सबका घर है। यही वजह है। नौजवानों से पूछा जाए, बताओ कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी मारी है? गिना दोगे? पूछ लिया जाए, बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? गिना दोगे? पूछ लिया जाए, बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है? गिना दोगे? पूछ लिया जाए, बताओ आज सियासत में क्या चल रहा है? बता दोगे? पूछ लिया जाए, बताओ आज क्रिकेट में क्या चल रहा है? बता दोगे? पूछ लिया जाए दुनिया में क्या चल रहा है? आज गिना दोगे? लेकिन यही नौजवान है, इनसे पूछ लिया जाए, बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। पूछ लिया जाए, बताओ अल्लाह के नबी ने कितने निकाह फरमाए हैं? कुछ नहीं मालूम है। पूछ लिया जाए, बताओ हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां दी है? कुछ नहीं पता है। पूछ लिया जाए, बताओ किस उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है? हुजूर के दादा का नाम क्या है? हुजूर की दादी का नाम क्या है? नाना का नाम क्या है? वालिद का नाम क्या है? वालिदा का नाम क्या है? कुछ नहीं मालूम है। लेकिन दुनियादार के बारे में पूछ लिया जाए तो ये बताते नजर आएंगे। इन्हीं मुसलमानों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुनो दुश्मन उड़ गए, बाकी जो बचे बुदगर है, उम्मती भाई से रुजवाइए पैगंबर है। हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीखे। तो अब सुन लो और याद रखो, हुजूर की जिंदगी को मैं मुकम्मल तो नहीं बयान कर सकता हूँ, इसलिए कि हुजूर की जिंदगी को बयान भी कोई मुकम्मल नहीं कर सकता है। पूरा कुरान हुजूर की शान ही है, पूरा कुरान हुजूर की समाने ही है, पूरा कुरान हुजूर की सीरत ही है। इसलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि हुजूर की जिंदगी को कौन बयान कर सकता है? राहत इंदौरी ने कहा था, ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू रहा आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और मेरे इमाम ने कहा, सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का खुले सेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखा जिससे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का हक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं हुजूर की जिंदगी। लेकिन बस मैं चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज थोड़ा सा आप मुझसे सुन लें और जरा बोल करके सुनते रहे, ताकि आपको हिफ्ज़ भी हो जाए, याद भी हो जाए। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, बोले एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग पीछे भी बैठे वो भी मेरी तरफ तवज्जो कर ले, इसलिए कि इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब आपको मेरे बाद मुफ्ती साहब के वजह से समाअत करना है। तवज्जो है, बस मैं आपका मूड बनाने के लिए और आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आ गया हूँ। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। देखिए हुजूर कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी की विलादत कहाँ हुई है? मक्के में हुई है। किस घर में हुई है? जिस घराने को हज़रत अबू तालिब के घर के नाम से जाना जाता है। हुजूर के वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपको मालूम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये खाने काबा के मुतवल्ली है, यानी खाने काबा की चाबी आपके हाथ में होती थी। आप खानदान कुरैश के सरदार हैं। खाने काबा की देखभाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें दी है और साथ में अल्लाह ने आपको 10 बेटे अता फरमाए हैं और उनमें सबसे छोटे बेटे हैं हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला। अब जो है देखें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इनकी शान आप सुन ले जरा सा। और यकीनन अगर इतने लोग आप बैठे, आप में से किसी के माँ और किसी की माँ और बाप का नाम ले लूं और उनके ताल्लुक से अच्छी अच्छी बातें करूं तो आप दिल में मुस्कुराएंगे कि मेरे माँ बाप का नाम ले रहा है, मेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है। तो जरा बताएं, अगर आपके माँ बाप का नाम मैं ले लूं तो आपके दिल को खुशी होगी, और अगर हुजूर के वालिदैन का नाम लिया जाए तो यकीनन हुजूर के दिल को खुशी होगी। जरा तवज्जो करें, हुजूर के
والد کون؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبدالمطلب. یہ حضرت عبدالمطلب کون ہے؟ خاندان قریش کے سردار ہیں. آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں. حضرت عبدالمطلب ہے. اسی وقت میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام ابرہہ ہے. آپ قرآن مقدس کو کھولیں, سورہ فیل کو پڑھیں, علم تر کیف کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے یہ ارادہ کیا تھا معاذ اللہ کہ وہ خانہ کعبہ کو گرائے گا, خانہ کعبہ کو ڈھائے گا, خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا. یہی ارادہ کیا ہے اس نے, اور اپنے ساتھ ہزاروں انسانوں کی فوج لی ہے, ہزاروں ہاتھیوں کا لشکر لیا ہے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے. اور خانہ کعبہ سے قریب میں مکے کی سرحد کے اندر اس نے جب پڑاؤ کیا ہے, اسی وقت میں حضرت عبدالمطلب قبیلے کے کچھ اونٹ ہیں چرتے ہوئے ابرہہ کے لشکر کی طرف چلے گئے ہیں, ابرہہ کے خیمے کی طرف چلے گئے ہیں. ابرہہ نے ان اونٹوں کو گرفتار کروا لیا ہے. حضرت عبدالمطلب کی قوم کے لوگ حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ کعبے کے متولی ہیں, آپ خانہ قریش کے سردار ہیں, ہماری قوم کے کچھ اونٹ چرتے ہوئے چلے گئے ہیں, ہمارے قبیلے کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کی طرف چلے گئے ہیں اور ابرہہ نے انہیں پکڑ لیا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور جا کے ان اونٹوں کو رہا کرائیں. کون؟ حضرت عبدالمطلب. توجہ ہے, حضرت عبدالمطلب کا توجہ رکھیں. کہاں گئے ہیں؟ ابرہہ کے پاس. کون ہے جو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے, خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر کے آیا ہے. اور دیکھیں حضور کے دادا کے ایمان کو آپ دیکھیں. حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ کو پتا چلا ہے کہ عبدالمطلب آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کے متولی, خانہ قریش کا خاندان قریش کے سردار آ رہے ہیں. حضرت عبدالمطلب جب پہنچے ہیں, ابرہہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے حضرت عبدالمطلب کے اپنے بغل میں بٹھایا ہے اور بٹھانے کے بعد کہتا ہے عبدالمطلب بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں ابرہہ ہمارے قبیلے کے کچھ اونٹ چرتے ہوئے تمہاری طرف آ گئے ہیں, تم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ ان اونٹوں کو چھوڑ دو. جب ابرہہ نے یہ سنا ہے وہ ہنسنے لگا ہے, اس نے کہا لگایا ہے, حضرت عبدالمطلب کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے عبدالمطلب جب آپ یہاں آنے والے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور اس بات کا تبادلہ خیال کریں گے کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں نا, میں خانہ کعبہ کو ڈھاؤں نا, لیکن آپ آئے ہیں, آپ نے آ کر کے خانہ کعبہ کی بات نہیں کی ہے بلکہ اونٹوں کی بات کی ہے. بڑی چھوٹی بات آپ نے کر دی ہے, بڑی ہلکی بات آپ نے کر دی ہے. میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں. آپ حضرت عبدالمطلب کا جواب آپ سنیں. حضور کے دادا کہتے ہیں ابرہہ سن, یہ اونٹ میرے ہیں, میں ان کا محافظ ہوں, یہ میری کسٹڈی میں ہے, میں ان کو بچاؤں گا, میں ان کا مالک ہوں. لیکن کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس کا مالک ہے, اللہ اس کا نگہبان ہے. اونٹ میرے ہیں, میں انہیں بچاؤں گا. کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کو اے بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیں حضرت عبدالمطلب یہ پیغام دے رہے ہیں, سنو ایمان والو, اگر تمہیں ڈرنا ہے کسی سے نہ تو اللہ سے ڈرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دو. اگر آنکھ پھڑک جائے کوئی تو کہتے ہو آج کچھ برا ہونے والا ہے, اگر کسی بیوہ کا چہرہ دکھ جائے تو کہتے ہو برا ہونے والا ہے. صبح کوئی دکان پہ آ کے ادھار مانگ لے تو کہتے ہو بہنی خراب ہو جائے گی, پورا دن ادھار جائے گا. یہ تمہارا ایمان ہے. اگر بلی راستے سے گزر جائے تو کہتے ہو آج کچھ برا ہونے والا ہے. ذرا بتائیں آپ مجھے, حضرت عبدالمطلب یہ پیغام دے رہے لوگوں سنو, ڈرنا اگر کسی سے ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے. نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے, نقصان پہنچانے والے نقصان سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے, فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, تمہیں بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں فائدہ پہنچے گا, اگر اللہ چاہے گا تو تم نقصان سے بچو گے. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس سے ڈرنا چاہیے. ذرا توجہ کریں, آج صبح کوئی دکان پہ آ جائے, اگر جیب میں پیسے نہ ہو کہتا ادھار دے دو, کچھ دیر کے بعد لا کے دے دوں گا, تو یہی کہتے ہو پورا دن میرا نقصان میں جائے گا, پورا دن ہمارا ادھار میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں سنو مسلمانوں, جب تک تم زندہ ہو اور جب تک تمہیں تمہارا رزق مل نہ جائے تب تک تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے. حضور فرماتے ہیں سنو, جس کے ذمہ اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا ہے جب تک وہ اتنا رزق پا نہ لے تب تک اسے موت آ نہیں سکتی ہے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. بتائیں آپ
आप, तो अल्लाह ने तो आपके जिम्मे लिख दिया है, आपको ये नहीं सोचना है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसको औहाम परस्ती कहा जाता है, चीजों से डरना कहा जाता है। आपको चीजों से नहीं डरना है। और एक मिसाल और आ गई है तो सुन लें। देखिए हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़े मशहूर सहाबी हैं। देखिए जब आपने मिस्र को फतेह किया है तो मिस्र के गवर्नर ने हज़रत उमर को लिखा है, मिस्र में आज भी एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। उस दौर में मामला ये था कि एक वक्त आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब उसमें कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी उसको उसमें काट के डाला जाता था, दरियाए नील चलने लगता था। जब इस्लामी हुकूमत आई है, जब मिस्र फतेह हुआ है, वहाँ के गवर्नर ने हज़रत उमर को लिखा है कि मिस्र का मामला ये है कि दरियाए नील एक वक्त आता है सूख जाता है, जब तक कुंवारी लड़की उसमें डाली ना जाए तब तक चलता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? हज़रत उमर ने कहा सुनो, दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की ज़ात से है। हज़रत उमर कलम उठाई है और आपने खत लिखा है, खत में आपने लिखा है उमर इब्न खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपका जब ये खत दरियाए नील में डाला गया है तो दरियाए नील ने बहना शुरू किया है और इस तरह बहा है, इस तरह बहा है कि आज 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील कभी थमा नहीं है। जरा आप देखें, जब ये हज़रत उमर की शान है तो हमारे आका की शान का तो चीजों से नहीं डरना है। हज़रत उमर ने कहा डराने वाली डरने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, उससे डरना। अपने का खत ले जाके डालो, दरियाए नील ने बहना शुरू किया, आज भी बह रहा है। ये शान है हुजूर के गुलामों की, इसलिए शायर ने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम का होगा। थोड़ा तवज्जो करें, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बरात सुन, काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह उसे बचाएगा। ऊंट मेरे हैं, मैं उनको बचाऊंगा। आपने ऊंट लिए लेके चले आए हैं और आकर के खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी। आपने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मौला, हम कितने कमजोर हैं, हम अब राह से लड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानों का लाहौर लश्कर है, हाथियों का हुजूम है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है। अल्लाह हम कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमाना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का खिलाफ पकड़ करके रोक के दुआएं की है और आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और आप पहाड़ी पर चले गए हैं। जब अबरहा ने खाने काबा पे हमला किया है तो कुरान इस पर शाहिद है, कुरान की आयतें गवाह है। जब अबरहा ने खाने काबा को गिराने के लिए हमला किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का लश्कर नहीं भेजा है, अल्लाह ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को भेजा है और इस शान के साथ में भेजा है कि हर एक परिंदे के साथ में 3 कंकलियां हैं, एक उसके पैर में, एक दूसरे पैर में, एक उसकी चोट में। और जब उन्होंने कंकरियां ऊपर से गिराई हैं तो हाथी जैसा सख्त जानवर और ताकतवर जानवर और कड़ी चमड़ी वाला जानवर जब उसकी पृष्ठ पर कंकरियां गिरी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के तमाम लश्कर को तबाह बर्बाद करके रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। खाने काबा फतेह हुआ है, खाने काबा देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को बचाया है। अबरहा आया तो खाने काबा को ढाने के लिए खाने काबा की अल्लाह ने हिफाजत की है, खाने काबा को महफूज रखा है। देखिए किसकी दुआओं की बदौलत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा हैं। अल्लाह ने इनको 10 बेटे दिए। कितने? 10 बेटे। हुजूर के दादा का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और हुजूर की दादी का नाम है हज़रत फातिमा, याद रखना। हुजूर के वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्दुल्ला को भी बड़ी शान और शौकत अता की है। और क्यों ना हो, इसलिए कि वालिद किसके? हुजूर के हैं। जरा हुजूर के वालिद का तज़किरा सुन ले, वालिदा का तज़किरा सुन ले, फिर गुफ्तगू खत्म होती। तवज्जो करें, मोहब्बत से एक मर्तबा बेदारी का सबूत देते, बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला। अब इनकी शान भी जरा से सुन ले, माँ बहनें भी तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन ले। तवज्जो आपकी देखें, हज़रत अब्दुल्ला है, अभी उम्र है 6 या 7 साल की। और फरमाते उसी दौर में यहूदियों ने एक मीटिंग की आपस में बैठ करके और इस बात पर सर जोड़ करके बैठ गए, तबादले ख्याल किया। तवज्जो करें, कब? जब हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, अभी हुजूर के वालिद की उम्र 6-7 साल की है। कहते हैं सुनो, हमारी किताबें ये बताती हैं कि जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं
जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाले हैं, उनकी विलादत का वक्त करीब हो गया है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब हो गया है, दुनिया में उनके आने का वक्त करीब से करीब तर है। लेकिन हमारी किताबें ये बताती हैं कि अभी वो दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन जो उनके वालिद होंगे उनका नाम अब्दुल्ला होगा, वो दुनिया में आ चुके हैं। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है, उनकी आमद को रोकना है, उनकी पैदाइश को रोकना है, उनके दुनिया में आने को रोकना है, तो उनके जो वालिद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है वो उनके वालिद बनेंगे, जिनको उनके वालिद बनने का शर्त मिलेगा। अगर हम उन्हीं को कत्ल कर दे तो ना अब्दुल्ला होंगे ना आखिरी नबी जलवागर होंगे। लोगों ने कहा कौन कत्ल करेगा? एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर तुम कत्ल कर दोगे तुम्हें इतनी मालो दौलत दी जाएगी कि जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी आलो औलाद को इतना दे दिया जाएगा कि साथ पुश्ते बैठ के खाएं। अब देखें आप, उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को तो कत्ल करना। चला तलवार लेकर महीनों की मुसाफिर तय करके पहुंचा है मक्के शरीफ में। जब खाने काबा के करीब पहुंचा, तवज्जो रखिएगा, कहां पहुंचा? खाने काबा के करीब। किसको कत्ल करने आया है? किसको? आप लोग हुजूर के वालिद। बोलने में टैक्स नहीं लगता है ना, जीएसटी लगती। बोले हाँ, हुजूर के वालिद। देखिए हमारे चचा भी गौर से सुने, नौजवानों की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी। हुजूर के वालिद की उम्र कितनी है? 6-7 साल की है। आया है मक्के में, खाने काबा के करीब पहुंचा, बड़ा थका हुआ था। उसने देखा कि कुछ बच्चे जो खाने काबा के करीब खेल रहे हैं, उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। उसकी नजर जम गई, उसने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद कहता है ये बताओ बेटा यहाँ अब्दुल्ला किसका नाम है? हजरत अब्दुल्ला उसको देख के मुस्कुराते हैं। आप फरमाते तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। उसने कहा नहीं, बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर लंबा सफर करके आए हो तो थक भी गए होगे, तुम्हें थकावट का एहसास भी होगा, तुम्हें भूख भी लग गई होगी, प्यास भी लगी होगी। अगर तुम मुसाफिर हो तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। फिर जो मुराद लेके तुम मक्के में आए हो, जो इरादा लेके तुम मक्के में आए हो, जो ख्वाहिश लेके तुम मक्के में आए हो, उस काम को अंजाम देने के लिए तुम मक्के में आए हो, तो तुम्हारा काम भी पूरा किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला गए हैं, आपने थोड़ा पानी लिया है, समझम लिया है, थोड़ी सी खजूरें ली है और आके उस यहूदी को खिलाते हैं। जब उसने खा ली है और उसने समझम पी लिया है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब बता कैसे आना हुआ है? उसने कहा अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्दुल्ला से क्या काम है? क्या तू अब्दुल्ला को जानता है, अब्दुल्ला को पहचानता है? उसने कहा नहीं। तो आप कहते हैं अब्दुल्ला से मिलना क्यों चाहता है? उसने कहा बेटे सुनो, अगर तुम मेरे मोहसिन न होते तो इस रात से पर्दा नहीं उठाता। तुमने मुझे यहाँ खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो एक राज है, इसको राज रखना। मैं अब्दुल्ला को तलाश करने इसलिए आया हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें ये बताया है कि अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो आखिरी नबी की विलादत दुनिया में नहीं हो पाएगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बताओ भूख तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। आपने कहा प्यास तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर पानी, अगर कुछ भूख प्यास का एहसास हो तो और खिला पिला दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा बस मैं अब्दुल्ला को ढूंढना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते सुनो, तवज्जो करें, लेकिन हुजूर के वालिद की शान को। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बता सुन, अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, सुन तू अपनी तलवार निकाल और अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा ले। ये मेरा सर है, ला तलवार मेरे सर को जिस्म से जुदा कर दे। उसने कहा मैं आपको कत्ल कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे खिलाया भी है, आपने मुझे पिलाया भी है, इस अजनबी शहर में आप मेरे मोहसिन है, मेरे करम फरमा है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं तो अब्दुल्ला के लिए आया हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तुम मक्के में आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। अपनी तलवार निकाल, मेरी गर्दन को काट ले। उस यहूदी ने नियाम से तलवार निकाली है, लेके आगे बढ़ा है और जा करके हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रखता है और कहता है मैं नादान था, जो इतनी अजीम हस्ती को कत्ल करने आया था। अरे जब आपके अखलाक का ये आलम है तो जो नबी आपकी औलाद में होंगे उनके अखलाक का आलम क्या होगा? कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। देखे हुजूर के वालिद, वो यहूदी कहता है अब मैं आपका गुलाम हूँ, चाहे तो आप मुझे माफ कर दे, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुन, हम अपनी जान के दुश्मन को माफ करते हैं। देखिए कौन है? हुजूर के वालिद हैं। अब हुजूर की वालिदा की शान भी आप सुने मेरी माँ, मैंने भी तवज्जो कर
لیں. حضور کی والدہ کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں حضرت آمنہ ہے اور مورخین فرماتے حضور کی والدہ ہے. آپ زمانے جاہلیت میں بھی تو پردے کا حکم ہی نہیں تھا، تب بھی آپ پردے میں رہا کرتی تھی. عام طور سے لڑکیوں کی طرف باہر نہیں نکلا کرتی تھی، کم بولتی تھی، ہمیشہ گھر میں رہتی تھی، خاموش رہتی تھی اور ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی. کیوں نہ ہو اس لیے کہ والدہ ہے کس کی؟ نبی آخر الزماں کی ہے. وہ کائنات کا مالک و مختار ہے، اس کی والدہ ہے. وہ کائنات کا سردار ہے، اس کی والدہ ہے. وہ تمام متقیوں کا سردار ہے، اس کی والدہ ہے. وہ تمام پرہیزگاروں کا آقا ہے، اس کی والدہ ہے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی بیٹا نیک ہوتا ہے. ذرا آپ بتا دیں مجھے، جب ماں نیک ہو تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو اور صدر معلیٰ جیسی ہو تو بیٹا سید سالار مسعود غازی جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا صابر پاک جیسا ہوتا ہے، وارث پاک جیسا ہوتا ہے، مخدوم پاک جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا اعلیٰ حضرت جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا مفتی اعظم ہند جیسا ہوتا ہے، صدر الشریعہ جیسا ہوتا ہے، حافظ ملت جیسا ہوتا ہے. آپ یہ علماء توجہ کریں گے، قاری نسیم صاحب کے بلا آپ بھی توجہ کریں. جب ماں نیک ہو، ماں متقیہ ہو، پرہیزگار ہو اور اس طرح نیک ہو کہ اپنے زیورات کو گروی رکھ کر کے منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ ادا کر دے، تو اس ماں کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. جنہوں نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہے ہر ایک قادری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرے تکبیر. توجہ کریں، دیکھیں یہ ہے حضرت آمنہ. مورخین فرماتے ایک بات اور تاریخ کے حوالے سے آپ سنیں. مورخین فرماتے ابھی حضرت آمنہ حضور کی جو والدہ ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اسی دور میں مکے میں ایک شخص کے یہاں ایک گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو غلام نے آ کے خبر دی کہ گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور غلام نے کہا سنو اس کا چہرہ بڑا کالا ہے، اس کی آنکھیں بڑی نیلی ہیں، بدنما اس کا چہرہ ہے. تو اس نے کہا سنو مکے کا ماحول یہ ہے کہ اگر یہاں اچھی خوبصورت بیٹی بھی پیدا ہو جائے نا تو اسے کوئی پالتا پوستا نہیں ہے، سینے سے نہیں لگاتا ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں. اور تو نے تو آ کے مجھے ایسی بیٹی کی ولادت کی خبر دی ہے جس کا چہرہ بھی کالا ہے، جس کی آنکھیں بھی نیلی ہے، جس کا چہرہ بھی بدنما ہے. اس نے کہا میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لے جا کے اسے قتل کر دے. ذرا آپ بتائیں حضور کی ولادت سے پہلے آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں اور خاص طور سے مکے کے حالات کو دیکھیں. اکثر لوگ ایسے تھے اس دور میں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو قتل کر دیا کرتے تھے. بیٹی پیدا ہو جائے تو ہاتھوں سے گردن دبا کر کے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. اس دور میں نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اس مکے میں جہاں بیٹی پیدا ہو تو لوگ قتل کر دیتے تھے. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے ہاتھ میں لے کے کہا تھا دنیا والوں سنو، بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو قتل نہ کیا کرو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا تھا جس کو اللہ ایک بیٹی دے دے اور اسے پال پوس کر کے وہ اسے اس کے گھر کا بنا دے، حضور نے کہا تھا سنو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ آئے گا. دیکھیں آپ آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے دور میں، اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، خاص طور سے پہلی اگر اولاد بیٹی ہو جائے تو باپ کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے. گھر میں لگتا ہی نہیں معاذ اللہ بچے پیدا ہو، لگتا ہے انتقال ہو گیا. دادا دادی بھی باہر نکلتے کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں بیٹیا پیدا ہوئی ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ رحمت آ گئی. بٹیا پیدا ہوئی، اب بیٹا پیدا ہو جائے تو پوری رات محلے والوں کو سونے نہیں دینا ہے. اتنے پٹاخے اتنے گولے لگے گا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس طرح گولے پٹاخے داغے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتائیں گے پوری دنیا والوں کو کہ بیٹا پیدا ہو گیا، فون کر کر کے خبر دیں گے. اور بیٹی پیدا ہو جائے جب دوسرا فون کرے گا تبھی پتا چلے گا. ذرا آپ دیکھیں اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے مسئلے مستق آ چکے ہیں. قاری عارف صاحب، قاری نسیم صاحب کی بلا کہ لوگوں نے بیٹیوں کی ولادت پر اگر 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں بیویوں کو طلاق دے دی ہے. ذرا آپ بتائیں اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ذرا سنیں ایسا ہی ایک سرفراہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا سن اس کے یہاں 6 بچیاں پیدا ہو گئی، 7ویں مرتبہ جب بیوی امید سے ہوئی، جب حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اس نے کہا سن یہ جو تیری کوکھ میں بچہ ہے نا اگر یہ بیٹا پیدا ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو یا تو تجھے میں قتل کر دوں گا یا تو طلاق دے دوں گا اور بچی کو بھی قتل کر دوں گا. بیوی بڑی نیک تھی، توجہ کرے. اس نے کہنے
नमाज बिछाई है और अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज उसने पढ़ के हाथ उठा के रो करके अल्लाह से इल्तिजा करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत में मजबूर हो, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, अल्लाह तूने मुझे 6 बेटियां दी है, ये 7वां बच्चा जो मेरी कोख में है, अगर ये बेटा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ठीक है, और अगर ये बेटी है तो ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि मेरा बेटा मेरा शौहर बेटियों से मोहब्बत करने लगे। जब उसका शौहर सोया है रात में तो उसने देखा मैदान महशर है, लोगों के हिसाब किताब हो रहे हैं, इसे जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ है, फरिश्ते इसे लेकर के जब जहन्नम की तरफ चले हैं, इसने देखा है कि इसकी पहली बेटी जहन्नम के पहले दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी बेटी जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर खड़ी है। तवज्जो करें, ये उलमा गवाह हैं, ये उलमा इस बात की तायीद करेंगे, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, पांचवें पे जब फरिश्ते पहुंचे हैं तो वहां 5वीं बेटी है, छठे पे पहुंचे हैं वहां 6ठी बेटी है, फरिश्ते कहते हैं 7वें दरवाजे से लेके चलो। जब 7वें दरवाजे पर गए हैं, 7वीं औलाद इसकी बेटी नहीं थी, इसने बेटे की ख्वाहिश की थी, 7वां दरवाजा जहन्नम का खाली है, फरिश्तों ने कहा यहीं से इसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। उसकी आंख खुल गई है, वो सारों कतार रोया है और कहता है ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह अगर मेरे नसीब में 10 औलाद भी हैं तो 10 मुझे बेटियां अता कर दे, मुझे बेटे नहीं चाहिए, इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप को जहन्नम की आग से भी बचा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा बताएं आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खुद बताएं, अल्लाह ने मुझे भी एक बेटी अता की, दुआ करें अल्लाह उसको सलामत रखे। एक बेटा भी एक बेटी भी है, आप मेरे अपने इसलिए बता रहा हूँ। एक मेरी बेटी भी कारी नसीम साहब, इनको भी अल्लाह ने माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह जिससे राजी होता है उन्हीं को बेटियां देता है। उलमा के यहाँ बेटियां ही कसरत से होती हैं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिससे खुश होता है उसके घर में या तो मेहमान भेज देता है, या तो बारिश नाजिल फरमा देता है, या तो बेटी की विलादत फरमा देता है। और हुजूर फरमाते सुनो, जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होए ना तो भाव ना सिकोड़ा करो, माथे को ना सिकोड़ा करो। हुजूर फरमाते अगर बेटी पैदा हो और कोई बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार करते वैसे ही जैसे बेटे की विलादत पर करता है, तो हुजूर फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्तों को उसके घर में भेजता है और वो फरिश्ते आने के बाद कहते हैं कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान से जब तक तू अपने बाप के घर में रहेगी हम भी रहमत बन करके तेरे बाप के घर में मौजूद रहेंगे। जरा आप बताएं, अगर आपके घर में एक बेटी है, 70,000 फरिश्ते 24 घंटे आपके घर में मौजूद रहते हैं। अगर इतने रहमत के फरिश्ते किसी के घर में मौजूद हो तो उसके घर में न कभी आसेब आ सकता है और न कभी वबाएं आ सकती है। तो बेटी पैदा हो तो खुशी का इजहार किया करें, इसलिए कि अगर बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेटियां भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। तवज्जो करो, उसने कहा ले जाओ इसे कत्ल कर दो। याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था, उसने कहा इसको ले जाओ कत्ल कर दो। वो लेके चला है जंगल में और जैसे ही गया है जंगल में उसने तलवार निकाली है, लड़की को कत्ल करना चाहा है। हातिफ गैबी से उसने आवाज सुनी, कहीं से आवाज आई है। हातिफ गैबी कहा जाता है कि आवाज देने वाला आवाज तो आती है लेकिन देने वाला दिखाई न देता हो। उसने आवाज सुनी, किसी ने कहा ऐ जालिम इसे कत्ल न कर, इसे हम छोड़ दे, हम इसे अपने रहमो करम के साये में पाल लेंगे। उसने फिर कत्ल करना चाहा है, फिर वही आवाज आई है, उसने वही उस बेटी को छोड़ दिया है। जरा आप तवज्जो करें कैसा मुआशरा था हुजूर की विलादत से पहले बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था, बेटियों को कत्ल किया जाता था। ये तो आज आपको जुमला लिखा हुआ मिलता है किसी गाड़ी के पीछे, किसी स्कूल में कहीं आप देखे आपको लिखा हुआ मिलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये आज ये नारा दिया जा रहा है और हुजूर ने 1500 साल पहले ये नारा दे दिया था, लोगों सुनो बेटियों से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह उस घर से राज़ी करता है। समझ रहे हैं आप? देखें एक बात और याद आ गई, तवज्जो है आपकी। देखें हुजूर है, हुजूर गुजर रहे हैं, सुनेंगे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने भी तवज्जो करें, हुजूर गुजर रहे, एक नौजवान हुजूर के बगल से निकला है, हुजूर ने उसको पलट के देखा। अब बताएं जिसे हुजूर पलट के देखे कितना खूबसूरत होगा। वो सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत तहिया कल्बी। हजरत तहिया कल्बी ईमान नहीं लाए तो हुजूर ने देखा पलट के इतने खूबसूरत, हुजूर रुक गए। हुजूर ने दुआ की अल्लाह ये इतना तेरा खूबसूरत बंदा है, अगर ये ईमान नहीं लाए ये जहन्नम में जलेगा तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। हुजूर वापस आए हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा है। हुजूर के लब से दुआ निकली है, अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली है। हजरत दहिया कल्बी पहुंचे हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने देखा, हुजूर ने कहा दहिया कैसे आना हुआ? कहते हैं हुजूर आज आपको देखने नहीं आप पे कलमा पढ़ने आया हूं, कलमा पढ़ाए और कलमा पढ़ा के हुजूर मुसलमान।
हुजूर ने कलमा पढ़ा, बड़े खूबसूरत, कितने खूबसूरत थे कि हजरत जिब्रील अमीन हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आ गए। हजरत उमर ने अपने दौर में दहिया कल्बी पे पाबंदी लगा दी थी कि मदीने में मत आना, वरना तुम्हारी खूबसूरती को देख के मदीने की लड़कियां फितने में पड़ जाएंगी। सोचो कितने खूबसूरत होंगे। ईमान लाए हैं। एक मरतबे हुजूर ने नसीहत की, हुजूर ने फरमाया सुनो, जो हम में छोटों पे रहम ना करे, बड़ों का अदम ना करे, छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है, ज़ारो कतार रोने लगे, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर फरमाते दहिया क्यों रो रहे हो? करते हैं आका आपने फरमाया जो छोटों पे रहम ना करे वो हम में से नहीं है। हुजूर ईमान लाने से पहले पहले मैंने 70 बच्चियों को अपने हाथ से जमीन में जिंदा दफन किया है। हुजूर ने फरमाया जमीन में दफन किया जिंदा? वो कहते हैं हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। रोने लगे हैं, ज़ारो कतार रोए हैं। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आ गए हैं। हजरत जिब्रील आके अर्ज करते हैं ए अल्लाह के नबी, आप हजरत दहिया कल्बी को कह दे कि ओ तौबा, उन्होंने तौबा कर ली है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने उनके इस गुनाह को माफ कर दिया है। जब हजरत दहिया कल्बी ने ये सुना है वो और ज़ारो कतार रोने लगे हैं, फूट फूट के रोए हैं। हुजूर ने फरमाते हैं दहिया अब क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका ये तो वो 70 बच्चियां थी, ये मेरी कौम की थी। हुजूर मैंने अपनी इकलौती बेटी को अपने इस हाथ से दफन किया है। हुजूर जब से मैंने उसे दफन किया है तब से मुझे रातों में नींद नहीं आती है। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ मुझे अपनी उसी बेटी का चेहरा नजर आ जाता है। हुजूर मैं चैन से सो भी नहीं पाता। हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को तवज्जो करे, जरा दिल के कानों से सुने। अर्ज करते हुजूर मैं अपनी कौम का सरदार था, एक मरतबा मैं तिजारत पे जा रहा था, आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबक ताज़ा कर लें। तवज्जो है, हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हुजूर मैंने ये महसूस किया कि कोई नन्ही सी जान मेरी बीवी के शिकम में सांसें ले रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, ये जो तेरे पेट में बच्चा है ना जो दुनिया में आने वाला है, अगर ये बेटा हो ना, जो प्यार से पालना, मोहब्बत से पालना, नखरे उठाना, किसी चीज की कोई कमी ना होने देना। और अगर इसके बरअक्स बेटी पैदा हो जाए, एक सेकंड मत सोचना, कत्ल करना, फौरन खत्म कर देना। जब वो चले गए हैं सफर पे, घर में बच्चे की विलादत हुई है और जब उनकी बीवी को उनके आगोश में बच्चे को दिया गया है तो उन्होंने देखा दुनिया में आने वाला बेटा नहीं बेटी है। उन्होंने हाथ को बढ़ाया है, शौहर ने कहा था कत्ल कर देना। जैसे ही लेकर के हाथों को उस बेटी के घर की गर्दन के करीब गई है, बेटी मुस्कुराई है देख करके। माँ तो माँ होती है, दिल तड़प गया है और अपने आप से कहती है जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिसको तूने पैदा किया है, उसे तू कत्ल कर रही है। सुन, आने वाली तारीख में डाइनों की तारीखें तो लिखी जाएंगी लेकिन तेरा नाम भी तारीखों में लिखा जाएगा कि एक माँ ऐसी भी थी जिसने बच्ची को पैदा होते ही उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। उसने सोचा अगर मैंने नहीं मारा तो शौहर आएगा वो कत्ल कर देगा। उसने सोचा आखिर कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस बच्ची को बचाया जा सके। उसने पड़ोस की औरत को बुलाया और कहा सुन, ये बेटी मेरी है लेकिन ये माँ तुझे कहेगी, बच्ची मेरी है लेकिन रहेगी तेरी घर में, बच्ची मेरी है लेकिन तेरे नाम से जानी जाएगी। इस राज को राज रखना और मैं तुझे इसके बदले हर महीने कुछ न कुछ दिया करूं। उसने कहा हर महीने कुछ न कुछ तुझे सोना चांदी दिरहम दीनार कुछ न कुछ दे दूंगी लेकिन राज रखना, राज खुलने न पाए। वक्त गुजरता गया, वो बच्ची बड़ी होती गई। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर एक दिन मैं सफर से वापस आ गया, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, दर से दरवाजा खोला, मैंने देखा एक नन्ही सी चांद है, बड़ा खूबसूरत उसका चेहरा है, गुलाबी उसके होंठ है, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, आंखें अजीब सी उसकी खूबसूरत है। आंखों को जो देख ले बच्ची से मोहब्बत करने लगे, उसको खिलाने पर दुलार करने पर मजबूर हो जाए, बड़ी खूबसूरत बच्ची। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर जब मेरी नजर पड़ी मैंने वहीं से आवाज दी ये किसकी लड़की है, और मैंने तलवार निकाल ली। सोचो कितने सालिम लोग थे, कैसा उनका दिल था, पत्था। कहते तलवार निकाल ली, मैंने सोचा अगर मेरी बेटी होगी पहले गर्दन काटूंगा उसके बाद घर में जाऊंगा। कहते मेरी बीवी आ गई और उसने कहा मेरे सरताज ये आपकी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस में रहने वाली है। मैंने कहा ये बता जो तेरी कोख से पैदा हुई थी उसका क्या हुआ, वो तेरे कोख से बच्चा पैदा हुआ था उसका क्या हुआ। तो मेरी बीवी ने कहा मेरे शौहर नामदार मेरे सरताज सुने जो मेरी कोख से पैदा हुई थी वो भी बेटी थी, लेकिन मैंने तेरी बातों पर अमल करते हुए मैंने उसे पैदा होने के बाद फौरन कत्ल करके उसको मौत के घाट उतार दिया। हजरत दहिया दूर मैं आ गया घर में, वो लड़की आती मेरे आंगन में खेलती, मैं उसको देखता रहता क्योंकि खून उन्हीं का था, खून का रिश्ता था। कहते हैं मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, माइल होता गया, देखता रहा। वो कहते हैं मैं उससे बड़ी मोहब्बत करने लगा, उसको खिलाता भी पिलाता भी, उसको लेके बाजार भी जाता, उसके लिए बाजार से तमाम चीजें खरीद के भी लाता। आप कहते हैं एक दिन रात के आगोश में जब मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था, मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर नामदार एक राज है, उस राज से मैं पर्दा उठाती हूँ, सुनो।
उस राज को मैंने आपके डर से अब तक राज रखा था। सुनिए, ये जो लड़की है ना जो पड़ोस में रहती है, जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसको खिलाते पिलाते बड़ा दुलार करते हैं, जिसके बगैर आप एक सेकंड एक मिनट नहीं रह सकते हैं, आपको मालूम है ये किसी पड़ोसी की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी बेटी है। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर जब मैंने ये सुना मैं बड़ी मोहब्बत करने लगा, उससे और मोहब्बत करने लगा। वो कहते हुजूर इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं बाजार में गया, मेरी कौम के लोगों ने मुझे पकड़ के कहा, दहिया तूने उस 70 बच्चियों को हमारी कौम की तूने कत्ल करके तूने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब अल्लाह ने तुझे बेटी दी है तो तू इसके बरअक्स करता है, उसे पालता पोसता है, मोहब्बत करता है, उसे कत्ल कर पड़ेगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हुजूर मामला ज्यादा बढ़ने लगे, इख्तिलाफात ज्यादा बढ़ने लगे, जब मुझ पर उंगलियां ज्यादा उठने लगी, मैंने ये इरादा किया कि आज की शम में अपनी बेटी को कत्ल कर दूंगा। वो कहते हैं जब मैं घर पे आया, मेरी बेटी मेरी बीवी के आगोश में सो रही थी, मैंने उसे धीरे से जगाया, उसकी आंख खुली, वो कहती अब्बा क्या खाना चाहिए? मैंने कहा नहीं। कहा पानी चाहिए? मैंने कहा नहीं। कहा आपके पैर दबा दूं? कहा मैंने कहा नहीं। जरा आप बताएं, अगर बाप की तबीयत खराब हो तो बेटों से पहले सिरहाने अगर कोई खड़ा मिलता है तो वो बेटियां मिलती हैं। बाप से सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो बेटियां करती हैं। अगर थोड़ी सी तकलीफ माँ बाप को हो जाए तो बेटियां ससुराल से वापस आके कहती हैं सुनो अगर तुम नहीं पाल सकते हो माँ बाप को हमारे हवाले कर दो, हम पाल लेंगे। ये बेटियां होती हैं जो माँ बाप को दिलो जान से ज्यादा प्यार करती हैं। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मेरी बेटी ने कहा अब्बा क्या पैर दबा दूं? तो आपको पानी की जरूरत है, तो आपको खाने की जरूरत है? वो कहते मैंने उसे उठाया और उठा के बाहर लेके आया और मैंने कहा सुन अपनी माँ से मत बताना, चल तैयार हो जा, हमें दोस्त के यहाँ दावत पे जाना है। मेरी बेटी कहती अब्बा रात के इस आधे पैर में कहाँ दावत पे जाना है? मैंने कहा जल्द जल्दी तैयार हो जा। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी है, चलने लगी है साथ में। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मैं उसे अरब के रेगिस्तान में लेके गया। जब मैं चलता रहा रास्ते में मेरे पाँव में कांटा चुभा है और कांटे की वजह से मेरे पैर से खून निकला है। मेरी बेटी ने अपने लिबास को फाड़ा है, अपने दुपट्टे को फाड़ती है, अपने कपड़े को फाड़ती है और मेरे पैरों में पट्टी बांध के कहती है मेरे बाप वापस चलिए, बाप का खून बहा करके मुझे किसी की दावत नहीं खानी है। आपको तकलीफ हो मेरे बाप, ये मुझे गवारा नहीं है, आप वापस चलिए। ऐसी हजारों दावतें मैं आपके नाम पे निछावर हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी से कहा चल बस थोड़ी दूर और चलना है। लेके गया, मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया और मैं करीब में बैठ करके जमीन खोदने लगा। वो कहते हैं कि मैंने जमीन खोद दी, जमीन में गड़ा खोद दिया, इतना खोद दिया कि इंसान को उसके अंदर डाल करके उसको ऊपर से जिंदा दफन किया जा सकता है। वो कहते हैं जब मैं मिट्टी खोद रहा था मैं पसीने पसीने हो गया। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहती अब्बा बैठ जाए, आपके हिस्से का काम मैं कर देती हूँ, आप थक गए होंगे आप बैठ जाए। उसे क्या मालूम था ये जो कब्र खोदी जा रही है मेरी खोदी जा रही है। उसे क्या मालूम था इसी में मुझको निस्तो नाबूद करना है, मुझे इसी में आखिरी सांस लेनी है। उसने अपने बाप से कहा बाप आप बैठ जाएं, मैं मिट्टी खोद देती हूँ। जब कब्र तैयार हो गई है, जब गड़ा खोद दिया गया है, हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी को बालों की तरफ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद उसमें डाल दिया है। जब वो जाके मिट्टी में अंदर गड्ढे में गिरी है, अंदर जाकर कहती अब्बा मुझे बाहर निकाल ले, मुझसे मजाक न करें, आप तो दावत के लिए लेके आए थे, यहाँ मेरी सांसें घुट रही है, मुझे डर लग रहा है। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मैंने फौरन मिट्टी डालनी शुरू कर दी, मैंने उस गड़े को बंद करना शुरू कर दिया। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है मैं जिंदगी भर आपको अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ मैं आपसे कभी खाना नहीं मांगूंगी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन आपसे खाने का मुतालबा नहीं करूंगी। मैं बेबंद लगे कपड़े पहन लूंगी, लेकिन आपसे नया लिबास नहीं मांगूंगी। मैं हमेशा अकेले तन्हाई में रह लूंगी, लेकिन आपसे खिलौनों की डिमांड नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप आप मुझे कत्ल ना करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगा। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर मेरे सर पे खून सवार था। देखें आप कितने संगदिल लोग थे। कहते हैं मिट्टी डालता रहा, कुछ नहीं सुना उसकी। जब उसके यहाँ ओठ तक मिट्टी पहुंच गई, बस अनकरीब उसका पूरा चेहरा बंद होने वाला था। वो कहते हैं उसने आसमान की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था ए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बेटियों को इसी तरह जिंदा जमीन में दरगोर किया जाएगा, दफन किया जाएगा? ए अल्लाह या तो तू बेटियों को जिंदगी न दे, बेटियों को अल्लाह को पैदा न कर, या तो बेटियों को बचाने वाला उनकी हिफाजत करने वाला कोई भेज दे। हजरत दैया कल्बी कहते हुजूर इसी तरह
तरह जब बेटियों की आहें निकली हैं और जा करके जब वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के बाद हजरत अब्दुल्ला के घर में आमिना के बतन से आपको पैदा किया है और आपने आकर के कायनात में ये ऐलान कर दिया था, ऐ बेटियों अब तुम न घबराना, अब तुम जिंदा दफन नहीं की जाओगी, इसलिए कि तुम्हें बचाने के लिए दुनिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करें, करेंगे मोहब्बत बेटियों से मोहब्बत करें। अहमद भाई की आवाज आ रही, नजर नहीं आ रही, तवज्जो है आपकी? हाँ है पीछे, समझ रहे आप? बेटियों से मोहब्बत करें। देखें मैं अर्ज कर रहा था, बस बात कंप्लीट कर लूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। तवज्जो, उसने कत्ल कर दो, ले गया, उसने कत्ल करना चाहा, आवाज आई जालिम में से कत्ल कर छोड़ दे, हम अपनी रहमत के साए में से पाल लेंगे। उसने छोड़ दिया। जब वो लड़की बड़ी हुई है तो मौरखीन फरमाते हैं अपने वक्त की बहुत बड़ी काहिना हुई। काहिना कौन? जो लोगों के हाथों को देखे, लकीरों को देखे तकदीर के फैसले बता दे, जो सितारों की चाल को देख के आने वाला वक्त बता दे, जो सितारों की चालों को देख करके आने वाले मामलात को बता दे। मौरखीन फरमाते एक मरतबे वही काहिना उसका गुजर हुआ है मदीने शरीफ की गलियों से। हुजूर की वालिदा है हजरत आमिना, 6 साल की उम्र है। तमाम बच्चियां एक जगह इकट्ठा हो गई अपने हाथों को दिखाने के लिए, ताकि उस काहिना से मालूम किया जाए आने वाला वक्त कैसा होगा। जब वो काहिना आई है उसने सबके हाथों को देखा है, और जब उसने हुजूर की वालिदा हजरत आमिना के हाथों को अपने हाथ में लिया है तो कभी हजरत आमिना के हाथ की लकीरों को देखती और कभी आसमान की तरफ देखती, कभी हजरत आमिना की तरफ देखती, कभी आसमान की तरफ देखती। बच्चियों ने कहा, काहिना जरा ये बता, तूने हमारे हाथों को देखा, चंद सेकंड में हमारी तकदीर के फैसले कर दिए, लेकिन आमिना की हाथों की लकीरों में ऐसा क्या है कि तू देख रही है लेकिन कुछ बता नहीं रही है। तो उस काहिना ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। उसने कहा था, बच्चियों सुनो, आमिना के हाथों की लकीरें इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्तों में ये आमिना या तो खुद नबी बनेगी या किसी नबियों की इमाम की है मां बनेगी। यही हजरत आमिना है, हुजूर की वालिदा, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती, अभी अल्लाह के नबी को मेरे शिकम में आए हुए 2 माह का वक्त गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए तिजारत पे, वापस नहीं आए हैं, इंतकाल हो गया है, इंतकाल की खबर आ गई है। हजरत आमिना फरमाती है, लोगों सुनो, जब हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे ये बशारत देता, आमिना मुबारक हो तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली, जरा देखो हुजूर की विलादत सुन ले, बस खत्म बात। हुजूर की शान लेके हजरत आमिना फरमाती, लोगों जब मैं पत्थर पे कदम रखती पत्थर मोम का बन जाता, मैं पानी लेने के लिए कोई के करीब जाती, पानी मुझे देख करके ऊपर आ जाता। हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, जिस चीज को भी मैं छू लेती थी खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। हजरत आमिना कहती, लोगों हर महीने कोई ना कोई नबी आता और आके बशारत देता, आमिना मुबारक हो तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, फिर वो रात भी आ गई जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा जिसकी सुबह शादी के वक्त दुनिया में आए हैं। हजरत आमिना फरमाती, सुनो, जब हुजूर की विलादत हुई है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं, जब जाने कायनात पैदा हुए हैं, जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा हुए हैं, हजरत आमिना फरमाती, लोगों सुनो, आम तौर से औरतों को बच्चों की विलादत के वक्त में जो तकलीफ होती है, मुझे ऐसी किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा दुनिया में आया है, आम तौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं, आने के बाद रोते हैं, आने के बाद चीखते हैं, आहो पका करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हजरत आमिना कहती है, सुनो, जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं तो आने के बाद रोए नहीं है, चीखे नहीं है, चिल्लाए नहीं है, हुजूर ने अपने सर को सजदे में रखा है और रखने के बाद यही दुआ की है, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जमील कादरी ने कहा था, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो। ये है हुजूर की विलादत। जरा बताएं, हुजूर दुनिया में आए हैं किसे याद करते हुए? आप। और हुजूर दुनिया से गए हैं किसे याद करते हुए गए? हमें और आपको। हजरत अली फरमाते, जब हुजूर को गुस्ल दिया जा रहा तो हुजूर के लब हिल रहे थे, कान लगा के सुना गया, हुजूर यही कहते, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र में उधर को रखा गया, यही हुजूर दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर तो हमें और आपको दिनों रात याद करते रहे, हमने हुजूर को कितना याद किया है। बस आखिरी बात सुन ले, देखिए हुजूर को याद करने का तरीका ये कि हुजूर के फरामीन पे अमल किया जाए। हुजूर को राहत पहुंचाने का तरीका ये है कि हुजूर ने जो बताया उस पे अमल किया जाए।
हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर आप नमाज छोड़ते हैं तो याद रखें आप हुजूर को तकलीफ दे रहे हैं, हुजूर को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। आप लाख कहते रहे कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बेनमाजी पर है तो आप हुजूर से हकीकी मानों में मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है, नमाज ये दीन का पिलर है। आखिरी बात मेरी सुन ले, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो ये जलसे भी कबूल नहीं होंगे। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए कल क़यामत में हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल जिसको फारसी में ये ट्रांसलेट किया गया है, रोज़े महशर की जा गुदास हुआ अव्वले पुरशिश नमाज हुआ, कल क़यामत के दिन हुजूर फरमाते सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। जो नमाज के मसले में बच गया वो बच गया, और जो इसमें फंस गया वो फंस गया। देखें कब्र में बचाने ना हम आएंगे ना ये उलमा आएंगे, महशर में बचाने ना हम आएंगे उलमा आएंगे। हम लोग अपने आप को बचा ले, यही काफी। आपको बचाने क्या आएंगे, समझ रहे हैं आप? इस मुगालते में न रहिए। अगर वहां कोई काम कोई आएगा तो हुजूर और हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। अगर नमाज पढ़ के आप गए तो याद रखिए जन्नत आपकी। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर लें, जिस तरह नमाज इन पे फर्ज है उसी तरह आप पे भी फर्ज। आपके लिए जरूरी घर में पढ़े, इनके लिए जरूरी है मस्जिद में जाकर पढ़ें। बिल्कुल बताइए नमाज आप नहीं पढ़ते, याद रखें। सहाबा फरमाते सुने मेरी बात को, मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज से आप पाबंदी करेंगे। अच्छा ही गुमान का काम है, समझ रहे हैं आप? देखिए पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, अमल करना न करना वो बोले आपका काम है। सहाबा फरमाते हैं अपने दौर में मोमिन और काफिर में फर्क ही नमाज की बुनियाद पर करते थे। आप फरमाते जो नमाज पढ़ता था हम सोचते थे ये मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता था हम सोचते थे ये काफिर है। याद रखें हुजूर गौसे आजम से आप मोहब्बत करते हैं ना, यकीनन मोहब्बत करते, दुआ किया करें इलाही कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन गौसे आजम का फरमान आप सुने, आप फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता है वो तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। आप फरमाते बेनमाजी मर जाए तो उससे नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन ना करो, वो इस लायक नहीं है उसे ईमान वालों के साथ और नमाजियों के साथ कब्रिस्तान में दफन किया जा सके। जो गौसे आजम बेनमाजी को नमाजियों के साथ दफन करना गवारा नहीं करते हैं, वो आप जैसे बेनमाजियों को अपने सिलसिले में कैसे गवारा कर सकते हैं। और गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, जो नमाजों को छोड़ता है अल्लाह को उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप फरमाते बेनमाजी के पास बैठने से बचो, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है वहां अल्लाह की बहुसतें नाज़िल। और आप लोग क्या बचेंगे बेनमाजी के पास बैठने से, जब सब कुछ बेनमाजी। लोगों को आपके पास बैठने से बचना चाहिए, है कि नहीं है? नमाज पढ़ा करें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है सुबह रात में सोए, आपको सुबह का सूरत देखना नसीब ना कोई है जो गारंटी दे सकता है सुबह का सूरत देखेगा। बहुत से लोग उम्मीदें लेके लेटते हैं, सुबह यहाँ जाएंगे ये काम करेंगे, उससे इतना बकाया लेंगे, उससे ये काम करेंगे। सुबह आंख नहीं खुली बिस्तर पे मुर्दा, सुबह का सूरत देखना नसीब नहीं हुआ। मौत बरहक आनी है, मरना है, उससे पहले तैयारी कर ले। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, उसे यहाँ से नहीं, यहाँ से कहाँ से, दिल के कानों से सुन ले और अमल कर ले और दुआ करे अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मां बहनें भी गौर से सुन ले। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये बताएं जहन्नम में सबसे सख्त अजाब किसे दिया जाएगा और सबसे सख्त अजाब क्या होगा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जहन्नम का सबसे सख्त अजाब हुआ कि अगर उसे सुन लेना तो ये बकरियां हैं ये इंतकाल कर जाए। तुम में से कोई कमजोर दिल वाला हो उसकी धड़कनें रुक जाएंगी, इतना सख्त अजाब का है जहन्नम का। आपको मालूम है जहन्नम? हुजूर फरमाते सुई की नोक के बराबर अगर दुनिया की तरफ खोल दी जाए उसकी गर्माहट से दुनिया के तमाम लोग इंतकाल कर जाएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं सुन सकते। सहाबा कहते हुजूर फिर ये बताएं जहन्नम का सबसे आसान अजाब क्या होगा। हुजूर फरमाते आसान अजाब ये है कि जहन्नमी इंसानों को जहन्नमी आग वाले जूते पहना दिए जाएंगे जिससे सर खोलेगा। पता है एक छोटी सी माचिस की तीली की चिंगारी अगर पड़ जाए तो 3 फुट उछल पड़ते कूद पड़ते हो। जहन्नम की सबसे हल्का अजाब ये होगा कि आग वाले जूते पहना दिए जाएंगे। सहाबा कांपने लगे, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी सबसे आसान अजाब ये है जिसे हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं और जो सख्त अजाब आप फरमा रहे हैं उसे हम सुन भी नहीं सकते हैं। तो हुजूर ये बता दे जहन्नम का जो सबसे सख्त अजाब है वो दिया किसे जाएगा। तो अब सब तवज्जो कर ले। हुजूर ने फरमाया सुनो जहन्नम का सबसे सख्त अजाब जिसे सुनने की तुम अपने अंदर ताकत भी नहीं रखते हो वो अजाब सिर्फ और सिर्फ बेनमाजियों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा?
میں نمازیوں کو دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے توبہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس جلسے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس نے جس طرح بھی اس جلسے میں حصہ لیا ہے, کاوش کی یہ محنت کی ہے, اللہ ان کی محنتوں کو, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ آپ سب کی عمر میں, کاروبار میں, کھیت و کھلیان میں, آل و اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ اس بستی پر, اس علاقے پر برکت عطا فرمائے. اللہ قاری عارف صاحب قبلہ کو سلامت رکھے, اور میرے بھائی اللہ رب العزت اختر بھائی اختر صاحب کو اللہ رب العزت سلامت رکھے. اللہ سب علماء کرام کو سلامت رکھے. بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کہ زمین کو گزار نہ کر سکے, کچھ خارت کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.